Hello dear students, once again welcome back to you all. Myself Amujraj, and finally we are back into our channel. So as you all can see, today we are going to start another chapter for you all, for especially for class 10 students, which is our quadratic equation. Actually guys, this chapter is so long. That's why in order to make this whole chapter interesting, we are not going to complete this whole chapter in just a single video. ठीक है, तो इसके लिए आई विल अपलोड पार्ट वाइज और एपिसोड वाइज. दिस वन इज आवर एपिसोड नंबर 1. तो इसमें थोड़ा सा बात कर लेंगे. एक्चुअली इन दिस चैप्टर यू हैव टू डील ओनली थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. About quadratic equation I told you in polynomial only, quadratic polynomial. So quadratic polynomial is also known as quadratic equation. ठीक है, अब बेसिकली बात करते हैं कि ये चैप्टर इतना लंबा हो क्यों गया है. Here in this chapter you will learn so many several methods of solving a quadratic equation. ठीक है, जैसे आपको पता होगा क्लास 9 में there you studied about, in class 8 also you studied quadratic equation. There we studied what? There we studied the method of linear squaring on both sides. Then we studied what? Then we studied middle term factor. These all method we have to study even in class 10th also. But here we will see another method which is our Sridharacharya formula, or we can say quadratic formula. ठीक है, so if you have not seen that video, I have already proved the formula of quadratic formula और श्रीधराचार्य विधि के अनुसार जो हमारा फॉर्मूला होता है उसे मैंने पहले ही प्रूव कर दिया, तो उसे पहले विजिट कर लो. ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. एंड हियर वी विल सी ओनली द फर्स्ट मेथड व्हिच इज आवर, बोलो कौन सा है? फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको सोल्व करने. और अभी तक आप तो पढ़ ही चुके होंगे, अभी तक तो हमारा काफी टाइम पास हो चुका है बोर्ड के लिए. तो बेसिकली स्पीड को 2x कर दो. और अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो जो बोर्ड पर क्वेश्चन है तो उसे सोल्व करके दिखाओ, तभी जानूंगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से. व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देन दैट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन इट. आपको क्लियर दिख रहा है ना रेड मार्कर? ओके, अगर क्लियर नहीं दिखता है तो बताइएगा, ब्लू से यूज करूंगा. ठीक है, तो पहले स्टार्ट कर देते हैं. फर्स्ट वन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हाउ वी कैन डिफाइन इट. सो वी नो दैट quadratic equation is also a equation of one variable, means that here we are taking a single variable. So how we can write? First of all, how we can define? So we can say a polynomial, or you can write here equation or an equation. देखिए ब्लू मार्कर से आपको क्लियर दिखता है ना? ठीक. A polynomial which has the maximum power of the variable is 2. यानी हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू द पावर, बहुत आपको वहां पे ज्यादा ब्लर दिख रहा है. ठीक है, वेट करिए, आपको मैं सही से करके दिखाता हूं. 1 मिनट होल्ड करिएगा. ठीक है. Okay students, now tell me everything is all right? Okay, so here we can see a polynomial which has the maximum power of the variable is 2 is known as quadratic equation. And another thing I told you about quadratic equation is that they have one basic, or they have one specific expression or expression form. कौन सा आपको पता होगा पहले से? ax square plus bx plus c is equal to 0. Here we can see just a single variable is repeated at 2 times, x square or x. आपको ये दिख रहा होगा a b c. Another thing you have to note that a can't be 0. ठीक है, अगर a 0 हो जाएगा तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि अगर 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई कर तो 0 ही मिलता है. तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. और another thing that we can see over here guys, a b and c both are real numbers. So by hearing this word real number, my god, we studied the first chapter only real number. What number system I told you there? What is real number? बताओ, कमेंट करो, क्योंकि अगर आप अभी तक ये सभी का जवाब नहीं दे पा रहे हो तो बताओ how you are prepared for the board, or how you are preparing till now for the board. Your condition is so bad if you are not going to give, or you are unable to give the answer. So guys, here we can see x square plus bx plus c is our basic form of quadratic equation. So here we can see basically
when we are told to solve the particular expression or equation of linear equation in two variable, तो वहां पर आपको दिखाया गया था कि दो टाइप के आंसर आते थे, एक तो हमारा ये आता था, एक ये आता था, दोनों वेरिएबल अलग अलग में आते थे। बट यहाँ पे आपको याद होगा कि आप लोगों ने क्लास 8 में ही पढ़ा है, 9 में ही पढ़ा है कि इसे सोल्व करने के बाद हमें दो जो वैल्यू मिलता है वो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करता है एक प्रॉपर एक्सप्रेशन के ऊपर। जैसे कि आपको याद होगा, सपोज व्हेन वी आर टोल्ड, आपको एक क्वेश्चन देके समझा देता हूँ, पहले समझ जाओ थोड़ा अच्छा से। जैसे 5x² + 4x + 3, ये हमारा एक इक्वेशन है एंड वी आर टोल्ड टू फैक्टराइज दिस वन, ठीक है। तो इसलिए फैक्टराइज कर लेते हैं फटाफट से, या सोल्व, पहले सोल्व समझो, फैक्टराइज नहीं सोल्व, हमें सोल्व करने के लिए दिया गया ये। तो बेसिकली क्लास 9 में हम लोगों ने क्या किया था, इसको फैक्टराइज कर देते मिडिल टर्म फैक्टर से। तो फटाफट से इसे 5 दिया 15, तो हम लोग 5x² लिख दिए प्लस, अब देख रहे हैं हमारा 15 को भैया कैसे कर सकते हैं, 3 से किया 5, 5 से किया 1, तो बोलेंगे भैया ये तो हमें थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो अब इसे अलग दिख रहा है तो इसे 8x कर देते हैं। जो टेबल हम लोग समझाने के लिए बना रहे हैं, तो भैया इसमें तो आसानी से बन गया 5x + 3x + 3, तो इसे फटाफट से सोल्व कर लिया, 5x कॉमन लिया तो हमारा x + 1, और यहाँ पर से 3 कॉमन ले लिया तो x + 1, यानी भैया हमें पता चलता था कि हियर वी गेट 2, क्या दो क्या आते थे, दो वैल्यू आते थे, दो रूट आते थे, जो भी बोलो, एंड ये जो हमारा रूट निकल के आते हैं ये दोनों हमेशा, देखो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, x + 1 × x + 3, आपको क्लियर दिख रहा है। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि जो हमारा सॉल्यूशन निकलता है उसे हम लोग रूट करते हैं, आपको पता ही होगा, या जीरोस भी बोलो या रूट बोलो। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज हमेशा ध्यान देनी है कि यहाँ पे हमेशा जो हमारा आंसर आता है ना, आपको याद होगा सीधराचार्य फॉर्मूला में मैंने बताया है, ये बॉट अल्फा एंड बीटा का वैल्यू कैसे आता है वो वाला आपको याद होगा पहले से। डिस्क्रिमिनेंट का यूज कैसे करते हैं हम लोग डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए। चलो एक बार उसे फॉर्मूला को लिख देता हूँ, उसका प्रूफ नहीं, बस फॉर्मूला को फटाफट से इरेज कर लेते हैं हम लोग। ओके, एंड ये भी हमारा इरेज होने वाला है। तो इसे समझने के लिए बस हियर वी टुक दिस मच टाइम, सो आपको कंठस्थ हो गया होगा दिमाग में। और एक बात हमेशा याद रखना कि whenever you are told to justify or tell whether quadratic formula or quadratic equation is there or not, तो हमेशा पॉलिनोमियल का जो बेसिक फॉर्म होता है ना कि any equation can be termed as polynomial when the variable is having their non-negative power, भी हमेशा याद रखना कि अगर आप उसे भूल जाते हो तो आपको ये भी प्रॉब्लम आने वाला है आगे चल के। तो पहले देख लेते हैं स्टार्टअप से। तो हमारा फॉर्मूला आपको याद होगा क्या था, बताओ जी, जोर से कमेंट करो। तो पहला हमें पता था d = डिस्क्रिमिनेंट, एंड d का आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा क्या था, बताओ। सबसे पहले तो एक कवर बनाया था हम लोगों ने, अब बताओ, कमेंट करो जी, तुम लोग क्या कर रहे हो बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा है, इतना तुम लोग लेजी कैसे हो गए हो। फटाफट से इसका क्या होगा बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे भैया अब बोल रहे हो कि d के ऊपर ऐसे पावर कैसे दे दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब d के ऊपर ऐसे दे दिए तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, बहुत बढ़िया। तो ये जो फॉर्मूला हम अभी लगाने जा रहे थे, ये तो अल्फा एंड बीटा का था, तो d पे कैसे लगेगा, तो d का हमारा क्या था, b² - 4ac, यही था ना जी, या एब्सोल्युटली यही था। तो ये तो बात हो गई भैया, d का फॉर्मूला हमारा लगता है तो यही था। आपको याद होगा अल्फा का यहाँ पे मैंने बताया था, कुछ बीटा के बारे में बताया था हम लोगों ने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फॉर्मूला ऑफ अल्फा। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि हाउ यू हैव टू यूज हियर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट और d। अच्छा एक बात बताओ, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या समझते हो, कमेंट करो जी, क्योंकि बहुत बार सुने होंगे डिस्क्रिमिनेंट, फिर भी मतलब नहीं पता होगा भैया क्या बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको हमेशा एक बात हमेशा याद रखनी है बच्चों, क्या बोलनी है बताओ स्टूडेंट्स। वेट करो, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा जी, अब ऑलराइट है, वीडियो क्वालिटी भी बढ़िया आ रहा है बताओ। ओके, अब ठीक आ रहा है, देखो बताओ, क्योंकि बार बार ऐसा होता है ना, बीच बीच में थोड़ा सा चेंजमेंट आता है तो क्वालिटी घट जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपने फॉर्मूला को। तो डी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, कमेंट कर दो फटाफट से, अगर नहीं आया तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट अल्फा, व्हाट इज अल्फा। अल्फा एंड बीटा बोथ आर द रूट, जो हम लोग मान के चलते हैं वेरिएबल, इसका कुछ भी एक बेसिक याद रखने के लिए अल्फा एंड बीटा मान लिया, कोई बात नहीं। सो फर्स्ट ऑन व्हाट अल्फा का वैल्यू क्या है, यानी दो रूट हमें निकल के आता है ना जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो पहला अल्फा को याद होगा, बता दो जोर से। हमें याद था भैया 2a था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, अब यहाँ पे लगता है b था भैया, था ना, और यहाँ पे प्लस था पहले में और रूट d था, यहाँ पे माइनस था, फिर एक और माइनस रूट d था। अब क्या हम लोग सही बोल रहे हैं,
अब भैया अगर डी का फॉर्मूला पुट किया जाए यहाँ पे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को ऊपर रख के आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। बोर्ड पे सही आ रहा है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आ रहा है। तो ये तो हमारा अल्फाइन बीटा का वैल्यू था, आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। तो इसे याद रखने के लिए आपको बता दिया मैंने, बट ये कंसेप्ट अभी हमारा यूज नहीं होने वाला है इन दिस वीडियो। सो आपको बस याद रखना हमेशा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डी का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ए यहाँ पे क्या होता है, बी क्या होता है, ये सभी आपको पता नहीं होगा। तो बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ का वीडियो फ्रॉम हियर 10 मिनट्स वी कंप्लीटेड हियर एंड फ्रॉम नाउ वी आर गोइंग टू सी द इंटरमिशन ऑफ दिस पार्टिकुलर वीडियो। So once again I'm telling you all, till now if you have not subscribed the channel, please go and subscribe the channel, press the bell icon and join the telegram channel। तो टेलीग्राम पर क्वेश्चन जा रहे हैं जी, वो भी प्रॉब्लम ठीक मैंने कर दिया। यहाँ तक कि कम्युनिटी पोस्ट आई एम ऑल्सो अपलोडिंग, देयर यू कैन सोल्व द आंसर, ठीक है, सॉरी देयर यू कैन सोल्व द क्वेश्चंस। फटाफट से ले लेते हैं आपका। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपको दोहराने में जा रहा हूं मैं कि आपको लिखना है टू जज दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यानी पहले आपको बताना है यस और नो में कमेंट करना। तो चलो भाई क्वेश्चन तो आपको टाइम लगेगा, आपको ले बढ़िया से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो बोर्ड पर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर 1/5x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा बताओ जी, ये तो दोनों आपस में आ जाता ना, प्लस 9। अब बताना है कि ये हमारा इक्वल टू 0 आप लोग कर रहे हो तो दे ही देते हैं 0। अब आपसे पूछा है कि भैया बताओ क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में, आप लोग में से भी सभी को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि भैया ये ऐसा हमारा कैसे पॉसिबल है, क्या ये हमारा है कि नहीं है। अगर आपको 0 ओड लग रहा है, कहिएगा 0 अगर देखेंगे तो ये तो हो करना चाहिए। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं 19। और आगे क्लियर, 0 मतलब तो आप लोग को लग रहा हो कि अगर RHS में 0 है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारा एक बेसिक फॉर्म में या एक अलजेब्रिक फॉर्म में रहता ही रहता है। अगर RHS 0 है तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को क्या लगता है कि हमारा वे फैक्टराइजेशन करने के लिए आ गया, फटाफट से उसे फैक्टराइज कर। तो वो डॉट मतलब आप सिंपली समझो, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1/5x इक्वल टू 19। So we have to tell you whether this one is our quadratic equation or not। फटाफट से तो ये तो नहीं, आपको पता ही होगा, क्यों नहीं है कमेंट कर दो जी, क्योंकि यहाँ पे मेरा माइनस में पावर दिख रहा है विच इज नॉट ए पॉलिनोमियल एंड ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ये क्या होगा बताओ। अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं ये फटाफट से। सो √2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 9 इज इक्वल टू 40। बताओ क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, कमेंट करो। अब आपको दिख रहा है भैया ये है, कैसे है जी, हम लोग देख सकते हैं एक्स पे कोई नेगेटिव टर्म नहीं है तो फिर ये पानी होगा। अब अचानक से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी। ओके जी, चलो इसे देख लेते हैं, क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, को दिख रहा है क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा नहीं है, कैसे नहीं है देखो बताता हूँ। अगर इसमें हम चलते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं टोटल पे मेरा एक्स स्क्वायर है तो एक्स से अंडर रूट कैंसिल हो जाए, बट हियर वी कैन सी 9 अब और रूट एक्स है, तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि एक्स हमेशा माइनस में आ जाएगा और यहाँ से ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाला है। तो ये तो आपको सिंपली पता चलेगा टू जज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट फ्रॉम नाउ वी आर गोइंग टू सी हार्ड एंड हार्डर क्वेश्चन। सो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा थोड़ा टफ है, मीडियम टाइप का है, जहां पे हमें सोल्व करने को मिलेगा वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पार्टिकुलर क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाना है मुझे। सो गाइस फ्रॉम अ सिंपल क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पहला सिंपल है, ठीक है, इसके बाद आपको हार्ड टाइप का दूंगा, ये मीडियम समझो या सिंपल समझो, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। पता चल गया ये मेरा क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी, आइए आराम से अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। सो फर्स्ट हियर इन दिस होल, ये पूरा वीडियो आपका बेस्ड है ऑन द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन है पूरा ये वीडियो हम लोग कंप्लीट करने वाला है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। सो हियर वी विल नॉट यूज another method like squaring on both side or
सीधाचार्य फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना, बल्कि यूज करना है फैक्टराइजेशन मेथड। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फटाफट से लिख दिया मैंने 4x²। अब फटाफट से कुछ नहीं मिल रहा है तो मिडिल टर्म फैक्टर लग गया अपना, तो 36 आ गया। 36 को हम लोगों ने ऐसे करके ऐसे कर लिया, ऐसे करके ऐसे कर लिया, ऐसे करके ऐसे कर लिया, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 4x²। हमें लाना है माइनस में, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 12 में से 3 गया तो 9, हमें लाना क्या है 12, तो 3 तिया 9 36, 4 तिया 12, कैसे होगा बताओ? अरे भैया बहुत आसान है, सोचो थोड़ा सा सोचो। हमें लाना है माइनस का साइन। आप लोगों को पता है कि अगर कहीं पर भी हमें माइनस का साइन दिखता है तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं बताओ? तो माइनस को रखने के लिए या तो हम लोग माइनस को ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि प्लस से वैसा ना हो, और उसके बाद हम लोग देते हैं आगे वाला। तो मेरा आगे वाला क्या है? प्लस है, यानी हमें ऐसा लेना है कि बोथ द साइन हमारा माइनस माइनस हो। तो स्टूडेंट कहेंगे भैया ऐसे कैसे पॉसिबल है? अगर हम लोग 3 3 6 और 4 करें तो 10, अगर हम लोग 4 3 4 और 3 कितना हो जाए? 4 3 12 हो जाता है ना जी। तो भी नहीं आ रहा है तो भैया कैसा क्वेश्चन है ये? तो मीडियम टर्म क्वेश्चन कहा आपने, हमें कुछ और दे दिया। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आप क्या कर रहे हो बताओ? आप इसे आसानी से कर सकते हो ना? कर सकते हो कि नहीं बताओ? अगर आपको ये 4 में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसे 2 कर लेते हैं। सिंपल आप समझो यार, ज़्यादा में अगर आपका दिमाग खराब होता है तो कोई बात नहीं है। अब आया उठ पहाड़ के नीचे, आ गया कि नहीं? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12। तो फटाफट से इसे हम लोग कर लेते हैं ऐसे इरेज। तो फटाफट से आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। अभी आपको मैं समझा रहा हूँ आसानी से, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको मैं बहुत जल्दबाजी में समझाऊंगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान दे देना। आपने तो ध्यान दिया है, बहुत पढ़े हो यार, ठीक है जी। अब इसे 2x कॉमन ले लिया मैंने, बहुत बढ़िया। 2x माइनस 3, भैया यहाँ पर से -3 कॉमन ले लो तो 2x माइनस 3 भैया, तो 2x माइनस 3 और ये मेरा 2x माइनस 3। तो भैया आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 3/2, यानी भैया मेरा x इक्वल टू 3/2 मेरा फाइनल आंसर है। तो चलो बच्चों बहुत बढ़िया, ये आपका सही हो गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी ए टफ टाइप ऑफ क्वेश्चन। टफ क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मेंटल एबिलिटी चेक किया जाएगा कि आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज आपका नॉर्मल ब्रेन एक्टिव है, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कितना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी ए टफ टाइप ऑफ क्वेश्चन। टफ कुछ नहीं होता, बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का इसे बता देना। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो बहुत कमजोर है पढ़ने में, वे तो कहेंगे भैया आपने गलत कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। अरे बच्चों स्टूडेंट्स बताओ ये आपने गलती की है कि नहीं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। हाउ? लेट्स सी फर्स्ट। हमारा भैया दिख रहा है x² बहुत बढ़िया। अब पूछना क्या भैया, एक तो मिल गया मेरा हाईएस्ट पावर 2 है, तो मेरा क्वाड्रेटिक तो हो गया भैया, और क्या पूछो? कुछ भी नहीं, कहीं नेगेटिव भी नहीं है, तो मेरा ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं। तो बेसिकली आपको कौन सा मेथड यूज करना है? यू हैव टू यूज योर फैक्टराइजेशन। फैक्टर लिखता हूं, आगे आपको डेरिवेटिव्स लिख लेना। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वी कैन सी 4x²। तो पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे 4a² माइनस b²। अब स्टूडेंट सोच रहे हो अगर इसे मिडिल टर्म फैक्टर से तोड़ूं भैया तो क्या निकलेगा बताइए? और स्टूडेंट्स का हालत खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4x दिख रहा है -4x। अब ऐसा तो कोई मिल नहीं रहा। x को हटाओ जी, क्योंकि x अपने आप आ जाता है, कोई बात नहीं। तो -4a कहाँ से रहा भैया? हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या दे दिया आपने? यही आप लोग गड़बड़ कर रहे हो ना, बताओ कर रहे हो कि नहीं? अब आपको याद है इसको हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, a + b × a - b। अब क्या हम लोग इसे यूज कर सकते हैं? देखते हैं आगे कैसे यूज करना है। तो फटाफट से आ जाओ यहाँ पे -4x। x अभी आपको लिख भी देता हूँ, या नहीं भी कोई बात हो रहा है, लास्ट में लिखूंगा, कोई बात नहीं। तो पहले -4a लाना है भैया। कैसे लाना है? या तो प्लस करो या तो माइनस करो, और मल्टीप्लाई में हमेशा में आना चाहिए 4a² - b²। तो 4 कॉमन है बाहर में, तो 4 और अंडर ब्रैकेट है a² - b² लाना है इसे। अब इसे कैसे लाएंगे स्टूडेंट्स बताइए? तो बेसिकली हम लोग एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग लिख दें -2a,
-2a। तो भैया हमें मिल जाएगा -4a जो कि मेरा ये है। तो अब इसे -2a कैसे लिखे इसके टर्म में। अब आपका ये सवाल आ रहा होगा कि इसको ऐसे इसके टर्म में कैसे लिखे भैया बताइए, ये तो पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। बस अपना दिमाग को थोड़ा हिलाओ, दिमाग को ऊपर जोड़ दो। तो अब आगे भैया एक चीज कर सकते हैं, -2 को ऐसे कॉमन लेके a+b लिख सकते हैं। हाँ भैया ये लिख सकते हैं। और अगर जस्ट इसको अपोजिट कर देना भैया, तो यहाँ पे अगर -2 को ले लें तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो भैया। एक चीज लिख सकते हैं हमारा 2a - b। तो अगर इसको 2 को कॉमन ले लें तो 2 बाहर रख देते हैं। हाँ भैया ये हम लोग कर सकते हैं ना बच्चों। देखो अगर ऐसे करेंगे, यहाँ पे +b भी ले लिया, a-b भी ले लिया जो कि मेरा इधर है। तो अब बेसिकली साइन को थोड़ा सा करके सोल्व करके देखते हैं कि क्या मेरा 4a मिल रहा है, -4a। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2a -2b -2a और +2b। अब आया समझ में बच्चों, बताइए कमेंट करिएगा। अगर अभी भी आपको डाउट है तो थोड़ा पूछिए, डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद ऐसा ही एक और टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे देने वाला। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फटाफट से अपने आ जाते हैं इधर, क्योंकि अब हमें कोई काम करने के लिए नहीं बचा है। तो फटाफट से इसे इरेज कर देता हूँ। यहाँ तक तो बात थी कि कैसे इसको मिडिल टर्म फैक्टर से तोड़े। अब आपको समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रोको, स्लो मोशन में करो और फिर से समझ लो। तो फटाफट से आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। टाइम नहीं देना इन क्वेश्चनों के ऊपर, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ टाइम लैप्स के लिए दिए जाते हैं। ऐसे लगेंगे इतने बड़े लेकिन आ जाएंगे इतने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह। ओके तो फटाफट से आ गया मेरा 4x² -4x है। तो क्या करेंगे, फटाफट से कुछ नहीं करेंगे, बस वैसे लिखते जाएंगे। माइनस आपका जहाँ तक आ गया था वहाँ तक आ गया था ना, तो आपको ऐसे लिख देना -2ax। अब 2a नहीं, आपने सिर्फ माइनस को कॉमन लेते तो माइनस ऐसे 2। यहाँ पे क्या था आपको याद है, a माइनस, पहले में +b था, फिर आपको याद होगा माइनस था मेरा, माइनस के बाद क्या था मेरा बताइए, 2 था, ठीक है जी, x था, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या था बताइए, here we can see we were having what, okay, we were having the -a -b, and here we can see we have to write here +4a² -b²। आपको दिख रहा है पूरा कंप्लीट हो गया? बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ऐसे फटाफट से सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 4x² फ्रॉम हियर वी कैन टेक समथिंग कॉमन। क्या कॉमन है बताइए, फटाफट से कमेंट करिए। 2x -2x को कॉमन ले सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो -2x कॉमन हो गया मेरा, a+b, ठीक है जी। हमें इंडिविजुअल दिख रहा है तो क्या हम इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं? तो फटाफट से हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दिया, उसे सोल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसे यहाँ से तोड़ देते हैं, ये वाला अच्छा, ये वाला अच्छा, ये इस साइड वो इस साइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कॉमन हो सकता है, 2x कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो वी कैन टेक हियर 2x। सो 2x हो गया यहाँ पर से माइनस, अब ये 1 बचा है तो इसे क्या लिख दें हम लोग, फटाफट से वही लिख देते हैं, तो a+b, ठीक है। अब इसे ब्रैकेट को अंदर कर देते हैं, फटाफट से इसमें देखते हैं क्या कोई कॉमन है। तो माइनस है मेरा a+b में, यहाँ पे क्या क्या छुपा हुआ है, 2 चीज़ छुपा हुआ है, एक मेरा है a -b और दूसरा है मेरा a+b। तो इन दोनों में कोई कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। क्या दिख रहा है आपको, माइनस दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है। तो a -b को ऐसे कॉमन ले लेते हैं। अब जब हम लोगों ने माइनस को ले लिया है तो बस यहाँ पे 2x बच गया, बहुत बढ़िया। अब 2x बच गया, माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ पे अब क्या बच गया भैया बोलिए। अब यहाँ पे मेरा क्या बच गया, यहाँ पे मेरा 4 है, और हम लोग ने एक चीज़ और कॉमन ले सकते थे, यहाँ पर से 2 को कॉमन लिया जा सकता था। तो इसे आप फटाफट से यहाँ पे 2 भी लिख देते हैं, -2। तो अब ये मेरा क्या होगा बताइए। हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दी है अभी तक। क्या मिस्टेक की है, चलो चेक कर लेते हैं। ओके जी, -2x है, ये मेरा 4a+b a-b। अब कहीं पे कोई गड़बड़ हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। तो आंसर मेरा गलत कैसे आएगा? नहीं आएगा, आंसर की चिंता बाद में करो, पहले सॉल्यूशन को आप देख लो। तो यहाँ पे अब मेरा क्या हो जाएगा देखो, -b हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। अब इसे सोल्व करके देखते हैं। ओके ओके ओके, तो और इसे फटाफट से लिखते हैं, 2x हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं एक चीज़ कहीं पे मिसिंग हो रहा है जी, देख लेते हैं फटाफट से। कोई मिसिंग नहीं है तो इसे -x माइनस रहने देते हैं और देख लेते हैं, आगे फिर चेक करेंगे अगर गलत आएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या हो गया देखो, फटाफट से सोल्व करें हम लोग। तो 2 को कॉमन ले लिया तो x यहाँ पे बचा, -b कॉमन था बाहर, a -b भी कॉमन है,
तो x ये वाला पूरा टर्म तो घट ही गया, सिर्फ x यहाँ पे बचा। अब हमारा माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो क्या बचेगा 2 कॉमन, तो 2a प्लस b। अब देख रहे हैं भैया ये कैसे पॉसिबल है, एक के साथ में इधर आप इधर ले आओ, तो क्या आपने गलत तो नहीं सोल्व कर दिया। और स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मैंने गलत सोल्व किया, हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे मेरा गलत है कि सही है जी। एक बार रिकैप मारते हैं स्टार्टअप से वंस अगेन। यस स्टूडेंट, तो हम लोगों ने रिकैप मारा तो हमें तो पता चल गया कि मेरा मिस्टेक क्या था। हम लोग को ये समझने के लिए ना होता है जी, हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिए, ये गलत किया हम लोगों ने, तो इसे इरेज कर लेते हैं फटाफट से। तो हम लोग इनमें इसे इरेज कर लिया पूरे को, और ऊपर ला सही है, ये तो हम लोग समझते हैं ना जी, इससे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले टर्म से इसमें, और इसको कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ते हैं, तो हम लोग ने तोड़ लिया था, फिर कैसे डबल टाइम करना गलत है, तो उसे मैनेज कर लिया हम लोगों ने। अब फटाफट से ये वी कैन सी ओके ऑलराइट नाउ। तो अब इसे हम लोग सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर से क्या हो गया, मेरा क्या कॉमन है बताओ, एक कॉमन चीज दिख रहा है क्या, माइनस ए माइनस बी। अब पूरे को कॉमन लीजिए, यहाँ पर से मेरा क्या बच गया 2x, अब 2x बचा है तो माइनस क्या बच गया मेरा a प्लस बी। बचा के नहीं देखो आप लोग अपने आप से देखिए, यहाँ पे प्लस था तो माइनस माइनस प्लस, a माइनस बी बाहर आ गया था तो यहाँ पे a प्लस बी बचा था। अब देख सकते हैं हियर वी कैन सी गाइस दिस टू आर कॉमन, और कॉमन आ गया तो मेरा क्वेश्चन बन के तैयार है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी आवर क्वेश्चन, आवर आंसर इज रेडी, 2x माइनस a माइनस बी। अब भैया इसका रूट का कैसे वैल्यू लिखूं, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, चलो इसे लिख दो आप लोग। तो पहले इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, तो यहाँ पे देखते हैं 2x इक्वल क्या होगा, तो ये माइनस में था तो इधर बेसिकली a प्लस बी हो जाएगा, तो x इक्वल क्या होगा a प्लस बी अपॉन 2। अब इसमें देख लेते हैं भैया क्या होगा, x इक्वल तो ये माइनस में था तो बेसिकली इधर a माइनस बी हो जाएगा और अपॉन 2, यानी a प्लस बी अपॉन 2 एंड a माइनस बी अपॉन 2। So finally we got two value of or two roots of our given variable, x का हमें दो वैल्यू आ गया है। तो ये तो सिंपल था लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बट अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, HW दे रहा हूँ, उसे नोट आउट करिए बोर्ड पर, मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी आई गिव यू अनदर क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, बस वही चीज है। बस एक चीज आप लोग क्या करते हो ना, इसे देखते हो तो आप लोग घबरा जाते हो, अरे भैया सी तो मेरा कोई रियल नंबर होता था, ये आप लोग क्या दे रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा ए स्क्वायर से ए 4 पे आ गए। तो इसे देख के मत घबराओ, बेसिकली आपको क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग इसे तोड़ना है। तो बेसिकली 9 इधर चल जाएगा, इस बार आप लोग मत लिखना, बस 9 को इधर ले आना, तो 9 ये पूरा से मल्टीप्लाई हो जाएगा a4 माइनस b4, थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आसानी से बन जाए। अब हम लोग को क्या करना, 6b स्क्वायर लाना है, तो x का भी रहने दो, हमें लाना सिर्फ क्या है माइनस 6b स्क्वायर, तो इसे हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे a4 और माइनस बी को ऊपर। और बेसिकली आपको आ ही जाएगा जी, कैसे आएगा अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो ये तो बन ही गया। अब आपको दिमाग लगाना है, इसे तोड़ के बताना है, एंड हियर ओनली वी आर गोइंग टू ड्रॉप दिस वीडियो। बट इसे ड्रॉप करने से पहले एक क्वेश्चन और आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, जो कि हमारा मीडियम टाइप क्वेश्चन है, और ये आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा मेरा फर्स्ट पार्ट बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। वी कैन सी 3 और 4 पार्ट देखेंगे, आसानी से आराम आराम से समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हमें बोर्ड का प्रिपरेशन करना है। एक दो मेथड होता है बोर्ड का प्रिपरेशन का। फर्स्ट मेथड आइदर यू कैन गो लाइक दिस, ठीक है, यानी ऐसे, पहला मेथड ये होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप इस मेथड के अकॉर्डिंग आप सिलेबस खत्म कर दिए ना क्लास 10th का, तो कम से कम आपको 3 टाइम्स रिवीजन चाहिए, 3 टाइम्स रिवीजन यू नीड, एटलीस्ट यू नीड 3 टाइम्स रिवीजन फॉर स्कोरिंग 95% प्लस मार्क्स। बट अगर आप ऐसे ऐसे चलते हो ना, ठीक है, अगर आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, ऐसे ऐसे मतलब समझ गए हो कितने स्लो मोशन में, आप समझ के, तो एटलीस्ट यू नीड 1 टाइम रिवीजन। अब बताइए ये आसानी की ये आसान है, सबको यही लगेगा, क्योंकि 12 मंथ का सिलेबस है, तो कम से कम 8 महीने में खत्म करेंगे, और फिर बच्चे 4 महीने हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे और मेरा प्लस आ जाए। लेकिन ये कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि जितना जल्दबाजी करोगे उतने ही आप गलतियां करोगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लो, और आपको बता देता हूँ लास्ट जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। ओके गाइस, वी कैन सी ओवर हियर, ओके आई एम गोइंग टू शो यू द क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी अनदर क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो जब भी आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिखे, और एक बात, जब भी आप जाइएगा ना, जब हाई क्वेश्चन में जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपको दिमाग थोड़ा सा जोर करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको ऐसे नहीं दिखेगा, बल्कि ऐसे दिखेगा एकदम लंबा चौड़ा सा 4 6 y x d w, यानी एकदम गजब का आपको दिखेगा क्वेश्चन। तो ऐसे में कंफ्यूज मत होना, जब भी आपको लगे कि हमें ज्यादा पावर का दिख रहा है,
या ऐसे कहो आपको ऐसे दिख रहा है 4x/9, कहीं आपको दिखेगा ऐसे 8/9x, ऐसा ऐसा मतलब टाइप का दिखेगा ना, या 75 ऐसा कुछ मतलब हार्ड दिखेगा, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको 1/x या 1/a को कुछ भी मान लेना। जैसे हम लोग 1/x को a बाई मान लेते हैं, तो बेसिकली हम लोग y के अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे, हमारा आसानी से बन जाएगा। अगर आप उसे लेके जाइएगा ना हमारे फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आपके साथ एक ना एक प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो बेसिकली आपको मैं एक एडवाइस करूंगा कि आपको क्या करना है, जब भी ऐसा आपको फ्रैक्शन टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिखे तो उसे सिंपल टर्म में मान लीजिए। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देने जा रहा हूँ, मैंने दे दिया है बोर्ड के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी कैन सी आपका LHS एकदम बच्चा बन के तैयार है, इसमें हम लोग कुछ अभी छेड़खानी नहीं करेंगे, पहले RHS को सही सलामत कर लेते हैं। तो बेसिकली हियर वी विल डू एलसीएम पहले ले लेंगे। तो ABX हमारा फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जो हमारा बचपन से पढ़ते हैं हम लोग। सो हियर वी हैव टू अप्लाई वेरी सिंपल मेथड, सो वी कैन राइट हियर व्हाट BX प्लस, again here we can see AX plus AB and this whole term. Then we have to do one thing, we will go through cross multiplication। तो कटकुट आ जाइए, कटकुट कर लीजिए। अब इसे सोल्व करेंगे तो मेरा ऊपर ABX and downward we will get what A plus B plus X into AX plus AB plus AB और B, हाँ BX है ना जी, BX। तो अब स्टूडेंट कहिएगा कि इतना गजब क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, और RHS में 0 है तो x का वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगा कैसे, देखो आपको मैंने पहले बताया कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें थोड़ा सा आपका दिमाग कंफ्यूज हो रहा है या आपका दिमाग सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो एक चीज़ हमेशा अप्लाई करिए, इस क्वेश्चन को आगे मैंने आपके अकॉर्डिंग सोल्व किया था, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब अगर अकॉर्डिंग से यहाँ अगर x हम लोग कॉमन लेके जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आगे जाके फंस जाएगा। तो ये बेसिकली आपको मैंने कौन सा टाइप बताया जो आप लोग सोचते हो, तो ये हमें फॉलो नहीं करना। क्यों नहीं करना, तो अगर हम लोग इस अकॉर्डिंग जाते हैं गाइस, तो हियर वी कैन सी x हमारा यहाँ आ गया। अब आप लोग कहिए अगर AB डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, तो हम लोग मानते हैं डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो x अपॉन, फिर तो मेरा वही प्रॉब्लम आएगा। अब इधर a प्लस AB आ जाएगा तो AB और मल्टीप्लाई करिए। तो बेसिकली टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन वी यूज हियर अनदर मेथड, ठीक है। अब आप लोग ये मत करना कि ये बुक का मेथड या अपना मेथड, अपना या बुक का मेथड मैटर नहीं करता, बल्कि आपको जो सिंपली मिल जाए इसमें टाइम लैप्स कम हो, यू हैव टू प्रेफर दैट मेथड, ओके। तो इसे फटाफट से हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब मैंने बोला आपको LHS सही है, LHS में छेड़खानी नहीं करनी, बल्कि हमें पता है हमें x का वैल्यू लाना है। तो क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बताइए कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें क्या लाना है, x का वैल्यू लाना है। तो यहाँ पर से हम लोग कोशिश करेंगे कि x मेरा बाहर आ जाए ताकि आसानी से मेरा a प्लस बी के टर्म में सोल्व हो जाए। सो हियर वी कैन विल गो थ्रू अनदर मेथड। सो नाउ वी हैव टू डू एलसीएम का जो मेथड होता है, इसे ऐसे लिख दो a प्लस b प्लस x, एंड यहाँ पर से मेरा टोटली माइनस था ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बोलिए, तो ये पूरा के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो a प्लस बी तो मेरा पहले से है और x मेरा एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो अभी हम लोग इसे ऐसे ही जाने देते हैं और पहले RHS को सोल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी ऊपर a प्लस बी, ठीक है, या b प्लस ए या a प्लस बी एंड ए बी आ गया। अब हम लोग इसके ऊपर जाते हैं LHS वाला ये क्या, तो बेसिकली मेरा क्या है, x यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब LCM हमारा एक करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, एक ही मेथड करते हैं जो बचपन से करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर देखेंगे हमारा क्या है, तो 1 है तो ओके 1। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, x अगर होता है तो x मेरे पास है। एक और हमें क्या देखनी है कि x ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास, तो अगर हम लोग क्यों ना इसे एक मेथड के अकॉर्डिंग और सोल्व करें, तो x मेरा पहले से और x को हमें लेना नहीं, तो एक चीज़ हम लोग ले सकते हैं डायरेक्टली, क्या हम लोग को x तो यहाँ पर भी है, तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, x यहाँ पर है ना जी, टोटल के साथ LCM ले रहा है ना, तो व्हेन वी विल गो थ्रू द LCM हमें क्या देखने को मिलेगा, ये वाला टर्म थोड़ा सा हमारा दिमाग खराब कर रहा है। तो बेसिकली इसे ऐसे करके a प्लस बी, समझ में आया सर क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर हम लोग x के ऊपर जाते हैं तो x को इसके लाने के लिए प्लस बी चाहिए और इसका माइनस साइन, तो 1 तो इधर प्लस में था तो 1 के साथ क्या करें बच्चे को ऐसे रहने देते हैं, तो बेसिकली माइनस a प्लस बी हो जाएगा। आपको कंफर्म आ गया ये मैंने कैसे किया, नहीं आया जी, देखिए अगर नहीं आया तो पूछिएगा, कोई बात नहीं है।
तो x को इसमें मेरा लाना है, एलसीएम ए कराना चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको a के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए ये चाहिए पूरा, और इसको क्या चाहिए, बस x चाहिए या सिर्फ 1 चाहिए, क्योंकि x तो इसके पास है तो 1 हो जाएगा, माइनस ये हमारा a प्लस बी हो जाएगा। अब आया समझ में, आ गया होगा बड़ी अच्छी तरह से, a प्लस बी अपॉन ए बी। अब आपको दिख रहा हो भैया फिर तो कॉम्प्लेक्स मेथड आ रहा है, a प्लस बी इतना हार्ड टफ। हियर वी कैन डू वन थिंग, वी कैन कट दिस होल, क्योंकि a प्लस बी ऊपर भी दिख रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर लिख देंगे बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय विच वन, a प्लस बी। और जब डिवाइड कर देंगे, आपको लास्ट बोर्ड कहाँ तक दिख रहा, ओके जी वहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से लिख देंगे वैसे ही, तो ये मेरा क्या होगा -1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स और होल का x इधर 1 अपॉन ए बी। मैं इसे अरेंज करके पूरा आपको सही से ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहाँ तक दिख गया आपको, ठीक है। यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं क्वेश्चन को एंड करूँगा, वीडियो को एंड कर दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हियर वी कैन सी वी गॉट दिस मच। वीडियो का लेंथ बड़ा होते जा रहा है, तो फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। देन वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेसिकली मेरा क्या हो गया बताइए, माइनस ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस एक्स का होल मल्टीप्लाई एक्स। अब आ जाते हैं, इसे फटाफट से सोल्व कर लेते हैं, देखिए कितना क्विक से सोल्व हो जाता है। तो फटाफट से माइनस ए बी, ए पर एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एंड वी कैन टेक हियर, यहाँ पर ले आएंगे क्योंकि मेरा एक RHS में 0 रखना है, क्योंकि आसानी से सोल्व हो जाए। तो पहले मेरा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ओके। देन वी कैन राइट हियर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस माइनस ए बी। अब माइनस ए बी नहीं, इधर आके प्लस हो गया। अब इसे फटाफट सोल्व कर रहे हैं सर, एक्स मेरा कॉमन, तो x प्लस ए, देन वी कैन टेक हियर व्हाट, b as a common, then x plus a. So from here we got value x plus a into x plus b. So from here we got the two values, x equal to minus a, x is equal to minus b. So देखो कितना आसानी से पूरा आपको दिख गया, ओके जी। Now you tell me how is this video quality, and till now if you have not joined the channel, once again I am telling you all, please go and join the channel bro, Telegram channel, and even press the bell icon and subscribe the particular channel. Thanks for watching this video. Have a nice day to you all. Good luck. Best of for you all. Best of luck for the board examination bro. Thank you for watching this video.